too. Exit polls are a very healthy exercise for democracy. The world over, all the healthier democracies are doing that. It's not just about who is winning and losing. Exit polls are important to understand the mandate, why exactly that mandate is coming. So a lot of data processing and data mining happens after the elections are over in order to understand the mandate. So elections only give you who is winning, but exit polls and that data processing gives you why a certain party or leader is winning or why the other guys are losing. And so there is a huge data processing and huge data mining of sort to understand the mandate, to explain the mandate. So it's an integral part of democratic system. It has to be honored and respected that way. Exit poll, NDA government is third time coming. So what would you say? Well, it is not neither expected nor out of the thing, because apart from the exit poll, we do daily trackers every day. And, you know, for the ABP, the tracker polls were on. With India Today, we do every 6 months mood of the nation for more than 20 years now. So all those numbers, you know, all those surveys which we have been doing, they were showing in the same direction. So actually, there is nothing new or nothing surprising in the exit poll. Any exit poll, whatsoever the total exit polls are saying, is pretty much continuation what in the January 26th issue of India Today in the mood of the nation or ABPC voter tracker that we have been saying. It is just a continuation of that. So we don't find anything surprising in the trend. So how you come so much confidence about NDA winning, sir? In your exit poll? Well, NDA is winning primarily because Prime Minister Modi is popular, simple. You know, and NDA is winning because there is a huge gap of the vote share in different states wherever they are winning over the thing. Wherever the opposition winning, they are winning at a good gap themselves, like in Tamil Nadu or in Kerala or in other states. Two states are really good battleground states. One is the West Bengal and one is Maharashtra, where the contest is on each and every seat. But beyond West Bengal and beyond Maharashtra, actually all the states are one-sided of sorts, this way or that way. Wherever they are going in one-sided way. So I don't see, and this has been our finding all along for almost like 1.5 years. The same kind of a tracker, same kind of mood of the nation, everybody has been replicating that and saying the same thing. So there is nothing surprising in the exit poll that you would say. Whatever the tracker and the mood of the nation poll of C-Voter was saying before the election, the exit poll trends are just going in the same direction, a bit more in contrast. Okay, but Rahul Gandhi said that this is the Modi fantasy poll, not exit poll. Well, politicians are free to say whatever they wish to say. I mean, they can say that they are fantasy polls of Mr. Modi. But when our exit polls were showing Congress is winning in Karnataka, when our trackers and everybody was showing that Congress is winning in Telangana, or for that matter, even if you count other India alliance partner, West Bengal, Delhi, Punjab, Kerala, Tamil Nadu, and so on and so forth, whenever we were saying that they are leading and they are winning, were we fantasy polls of Rahul Gandhi? Were we fantasy polls of Arvind Kejriwal, fantasy poll of Mamata Banerjee or Stalin or anybody or Naveen Babu or like that? So, I mean, that's okay. Politicians do their job. Their job is to try and win the election. But it would be nice if some respect is shown to, as a professional, what we do, some respect is offered to us as well. So, sir, what is the exactly number? Just You see, the bottom line is Mr. Modi is coming back, and with coming back with a bigger majority. If you want to ask me in one line, so what he won in 14, he came back with a bigger majority in 19, and he is coming back even bigger majority in 2024. The classic point is, it's going to be historical in a context that for the first time we are witnessing a party or a leader winning 3 mandates, and every time the vote and seat share is going up. That is something which even probably the Congress and even Mr. Nehru could not do. You know, winning each mandate with an increased vote share and increased seat share. So if that is happening as per the exit polling, that is the result that comes out. The bottom line is Mr. Modi is going to be the Prime Minister 3rd time in a row. Thank you, sir. Thank you.
भी दिखा रहे हैं, क्या इतना श्योर है, क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल में जो भी आंकड़े आ रहे हैं न तो वो आश्चर्यजनक हैं न अप्रत्याशित हैं। हम लोग तो रोज का ट्रैकर करते हैं, एबीपी के लिए सी वोटर डेली ट्रैकर आता है। साल में 2 बार हम लोग इंडिया टुडे के लिए विख्यात एमओटीएन पोल करते हैं, जो कि 20 साल से ज्यादा हो गए करते हुए। जो कुछ भी इन एमओटीएन इंडिया टुडे का हो चाहे एबीपी का ट्रैकर हो जो हमने किया, इसमें हम लोग जो बात कहते आ रहे थे लगातार नॉन स्टॉप, एग्जिट पोल वही मिरर कर रहे हैं। इसका मतलब केवल यह है कि चुनाव शुरू होने के पहले जो हमारे अंतिम आकलन ट्रैकर और एमओटीएन के थे, उसमें और आज के आकलन में उसी दिशा में और ट्रेंड बढ़ गए हैं। लेकिन इसमें न तो कुछ अप्रत्याशित है, न इसमें कुछ आश्चर्यजनक है। अरे ये क्या हो गया? कल बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये पिक्चर तो देखी हुई सी लग रही है। पिक्चर देखी हुई इसलिए लग रही है क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं था कि कुछ आपको नया चीज पता लग गई हो। अगर आप पॉलिटिक्स और सर्वेज और पोल्स फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि पिछले 6 महीने से हम लोग यही कह रहे थे, इसलिए आपको पिक्चर 6 महीने से आप रोज देख रहे थे, तो आपने कल देखी तो आपको लगा कि पुरानी पिक्चर है। एग्जिट पोल में नहीं लगता है कि उन्हें उतनी बहुमत मिलेगा, उतनी अच्छी रिस्पांस मिलेगा। उड़ीसा, तेलंगाना जो दिख रहा है, बंगाल भी, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, इन राज्यों में भी फिर वही मैं बात कहूंगा कि ये ना तो अप्रत्याशित है, ना अनपेक्षित है, ना आश्चर्यजनक है। क्योंकि ट्रैकर्स में हम लगातार बता रहे थे कि उड़ीसा में बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। अब वो इतना ज्यादा क्लासिकली बढ़ गया इलेक्शन रिजल्ट आते, मतलब इलेक्शन खत्म होते होते, कि उनको अब लगभग एक तरफा सीटें लोकसभा की मिल रही हैं उड़ीसा में। बंगाल में भी हम बता रहे थे यही बात कि बंगाल में मामला फंसा हुआ है, बैटल ग्राउंड स्टेट है। और बंगाल में जब से वो भर्ती घोटाला वाला नियुक्ति वाला मामला सामने आया, उसके बाद से भद्रलोक जिसे कहते हैं शहरी बंगाल, वहां पर भी ऐसा लगता है बीजेपी के नंबर्स बढ़ गए हैं और ज्यादा। और रही बात तेलंगाना की, तो तेलंगाना में या आंध्रा में, इन सभी जगहों पे हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि बीजेपी गेन कर रही है, बीजेपी के लिए अच्छा मौका है। और अलायंस पार्टनर के साथ में टीडीपी के लिए हम बोल रहे थे कि वो गेन कर रहे हैं और इस बार सत्ता में भी आ सकते हैं वहां पर। तो जो बीजेपी के लिए नुकसान के वाले स्टेट थोड़े बहुत थे, वो नुकसान थोड़े बहुत थे, लेकिन लोगों ने उनको अपवाद की तरह नहीं काउंट किया। जैसे हमने लगातार बोला कि राजस्थान में 5 सीटें फंसी हैं, लेकिन 20 सीट तो बीजेपी आगे है ना। अगर तो आप अपवाद को मुख्य आकलन मानने लगेंगे तो ये थोड़ा सा समस्या की बात है। मुझे ऐसा लगता है कई सारे विश्लेषकों से थोड़ा सा ये गलती हुई है कि वो अपवादों को काउंट करते करते उन्होंने बोला कि बीजेपी 25-30 सीट हार रही है इसलिए वो सत्ता के बाहर हो रही है। वो अपवाद इधर के तो काउंट कर रहे थे, दूसरी साइड में जो बीजेपी के गेन हो रहे हैं, नई सीटें जो मिल रही हैं, उनको काउंट कर ही नहीं रहे थे। तो यही पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा आकलन का विभेद हुआ। जो पहले चरण के बाद में टर्नआउट का ड्रॉप हुआ, उसे ओवर एनालाइज कर दिया गया। ओवर एनालिसिस, जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने के कारण जो है वो समस्या आई। अदरवाइज हमारे ट्रैकर में, डेटा में, अब चूंकि इलेक्शन कमीशन का हमारे ऊपर बंधन था, हम बीच में कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप धैर्य के साथ में मुंह पे पट्टी बांध के बैठे थे कि जब हम आएगा इलेक्शन एग्जिट पोल का तब उस दिन बोल देंगे। अन्यथा कभी भी 1 सेकंड के लिए भी कहीं पर भी ये डाउट नहीं था कि जो हमारे प्री पोल ट्रैकर्स का जो आकलन था चुनाव शुरू होने के पहले, उसमें कोई फेरबदल ऐसा हो रहा है कि मामला इधर का उधर और उधर का इधर हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं था। बट राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये राहुल जी नेता हैं, नेताओं के अपने बयानबाजी होती है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में कोई एक राज्य ऐसा बता दें राहुल जी कि जहां पर हम बोल रहे थे कि कांग्रेस हार रही है और कांग्रेस जीत गई, या जब हमने बोला कि ट्रैकर में और एग्जिट पोल्स में कि कर्नाटक कांग्रेस जीत रही है, तो क्या एग्जिट पोल राहुल जी के फैंटेसी पोल थे? या तेलंगाना में जीत रही है तो क्या वो राहुल जी के फैंटेसी पोल थे? या जब और राज्यों में विपक्ष के जाए ना, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत रही है, या स्टैलिन जीत रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीत रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल पंजाब में जीत रहे हैं, या ये अपने उड़ीसा के नवीन बाबू वहां का जीत रहे हैं, जितने भी राज्य जब जब जहां जहां विपक्ष ने जीते और हम बोल रहे थे कि ये विपक्ष यहां जीतने जा रहा है, तो क्या हम राहुल जी के फैंटेसी पोल थे? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जाती है। एक राज्य वो ऐसा बता दे, घूम फिर के वो केवल एक जगह आ जाएंगे, 2004 की बात करेंगे। 2000 कुछ बीते 4 को बीते हुए 20 साल हो गया, आप आ जाइए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का बड़े से बड़ा वकील सारे केसेस नहीं जीतता, दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन
सारे मरीजों को जिंदा रखने में कामयाब नहीं हो पाता, उसी तरीके से किसी प्रोफेशन में अगर एक आध कोई चूक गई है 20 साल पहले, आप 20 साल पहले का झुंझुना कब तक बजाते रहेंगे? आइए ना वर्तमान में, आप पिछले 10 साल में बताइए कि कहीं ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने सरकार बना ली और एग्जिट पोल्स ने कहा कि कांग्रेस हार रही है। नहीं हुआ ना। जहां जहां कांग्रेस जीत रही थी, एग्जिट पोल्स ने कहा कांग्रेस जीत रही है। तो जब एग्जिट पोल्स कह रहे थे कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस जीत रही थी, क्या उस समय वो राहुल जी के फैंटेसी पोल थे? नहीं। उसी तरीके से न उस समय वो किसी के फैंटेसी पोल थे, न इस समय हम किसी के फैंटेसी पोल हैं। जो हमारा काम है हम रोज कर रहे हैं, ट्रैकर कर रहे हैं, रोज के रोज। जैसे काम है रोज बीपी नापना, रोज ब्लड शुगर टेस्ट करना, हमारा काम है रोज ये करना। अब कोई उन रिपोर्ट्स को न देखना चाहे, वार्निंग साइंस को न पढ़ना चाहे और उसके बाद में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पे आईसीयू में भर्ती होना पड़े, तो फिर अब उसके बाद में आप बोलें कि डॉक्टर दोषी है या जो नर्स हैं वो दोषी हैं, तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी जाती है। सर एक दिन बाकी है, परसों एनडीए को और यूपीए को कितने टोटल लग रहा है? देखिए, नंबर के ऊपर अब तो सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। आप अगर परसों नतीजे के लिहाज से देखना चाहे तो बॉटम लाइन केवल एक है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और न केवल प्रधानमंत्री वो बनने जा रहे हैं, वो पिछली बार के दोनों जनादेश से ज्यादा वोट और ज्यादा सीट लेकर के वापस आ रहे हैं। और ये ऐतिहासिक होगा क्योंकि कांग्रेस और पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू भी, वो भी 3 मैंडेट उन्होंने जीता था, लेकिन तीनों बार उनके वोट और सीट बढ़ी नहीं थी, कम हुई थी। उस लिहाज से यह बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी 14 से ज्यादा वोट और सीट लेकर के 19 में जीते और 19 से ज्यादा वोट और सीट लेकर के 24 में जीतने जा रहे हैं, ऐसा आंकड़ों का बयान है। अब हम लोग परसों काउंटिंग में सारी चीज देख ही लेंगे, लेकिन बॉटम लाइन केवल इतनी है कि वो नरेंद्र मोदी 3.0 देखने जा रहे हैं। एग्जिट पोल्स की फाइंडिंग यही है, यही ट्रैकर्स की, यही प्री पोल सर्विस की फाइंडिंग थी, और वही पे वही जो है फाइंडिंग उतनी है।